Hello, myself Sanjay Tiwari. Welcome to Sabka Ganit Maths on Track. Today I am going. Today I am going to talk about the very important topic of application of derivative, that is monotonicity. Monotonicity. Mona, Tony are in the same city. You can call this Mona and Tony are in the same city. तो उसको बोलेंगे monotonicity. क्या यही होगा मीनिंग? I think this is not the meaning. Monotonicity means either increasing or decreasing behavior of the function. Increasing or decreasing behavior of the function is called monotonicity. So using this concept I will talk about the very important part, behavior of the function. तो समझ ही गए होंगे. So let us talk about Mona and Tony in the same city. Generally, when we talk about monotonicity, it is behavior of the function in certain interval on x-axis. X-axis में we talk about intervals. In which interval function is increasing, in which interval function is decreasing, in which interval function is constant. This type of behavior we will discuss here. I will take two approaches. One is graphical method and second one is calculus method. अगर तुम ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हो, इफ यू कैन ड्रॉ ग्राफ वेरी इजीली, क्योंकि एग्जाम में ये ध्यान रखना, व्हाट कॉन्सेप्ट्स यू लर्न हियर और एनी एट एनी प्लेस, कॉन्सेप्ट जो लर्न करते हो उसका रिटर्न या उसका यूज, बेटर यूज, व्हाट इज बेटर यूज ऑफ दैट कॉन्सेप्ट. तो विद इन टाइम लिमिट फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम, आई कॉल JEE, KVPY, NDA and other competitive exams, within time limit, if you are able to solve by any method and answer is correct, that is perfect method. ये ध्यान रखना. तो आप जो भी मेथड लर्न करते हो, which ever method you learn, always remember टाइम लिमिट में वो सॉल्व होना चाहिए. ये नहीं कि वही मेथड आपका कॉम्प्लिकेटेड हो गया. सो वी हैव टू मेथड्स, ग्राफिकल एंड कैलकुलस मेथड. ग्राफिकल का मतलब ग्राफ से हम लोग स्टडी करके we will talk about monotonicity. Monotonicity वर्ड जब भी होगा तो अदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और फंक्शन इज डिक्रीजिंग. एक जैसा बिहेवियर फंक्शन का होना चाहिए या कांस्टेंट है किसी इंटरवल में, तो वी कॉल मोनोटोनिसिटी. जनरली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को ही हम लोग स्टडी करेंगे इसमें, और जहां कांस्टेंट होगा उसको बाहर कर देंगे. तो लेट अस स्टार्ट ग्राफिकल मेथड. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट फॉर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए. लेट ग्राफ इज एक मैंने फंक्शन लिया fx, उसका सपोज I call graph of fx. सपोज मैंने ग्राफ दे दिया, x axis is here and ग्राफ मैंने सपोज ऐसा दिया, ये x axis, this is x axis and ये चलता जा रहा इधर. सपोज दिस पॉइंट इज, I call this 1, okay, -1. सपोज दिस इज -1 and this point I call, जो ये आपका मिनिमम जहाँ दिख रहा है, this is 2. I call this point, suppose I call this 3, I call this 4 and this function is y equal to fx. Now somebody says you what, find intervals of increase or decrease of the graph. Very easy, ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है. तो यहाँ से देखो, जैसे जैसे x बढ़ाते हो y अगर घटता, as we go from left to right, फाइंड हाइट ऑफ fx. अगर हाइट ऑफ fx डिक्रीज कर रहा है तो आई विल कॉल डिक्रीजिंग फंक्शन. तो लुक एट हियर, जब मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ इंटरवल -1 to 2, सो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन in the interval -1 to 2 and 2 to 3. Now look at here, as you move from 2 to 3 on x-axis, graph increases. So this is increasing interval of the function 2 to 3. Now 3 to 4,
अगेन 3 to 4 अगर लोगे तो अगेन डिक्रीजिंग, और 4 to infinity एरो मैंने दे दिया है एंड हियर इट इज कांस्टेंट. So if graph of the function is given or you are able to draw the graph of the function, whatever process you apply, अगर ग्राफ दिया हो और you are going to draw the graph easily, from graph you can find intervals of increase or decrease of the function. How? तो यहाँ देख सकते हो आंसर -1 से 2 में डिक्रीज करेगा, तो आंसर मैं लिख रहा हूं आंसर डिक्रीजिंग इन विच इंटरवल, तो -1 से 2. जनरली वी टेक ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल जनरली नहीं लिखते क्योंकि वो एक पॉइंट होता है, पॉइंट पे आई विल टॉक अबाउट at the points in decreasing or increasing behavior. यहाँ we are bothered about intervals of increase. So some isolated points can be neglected. So generally -1 से 2 मैंने लिखा, देख लो डिक्रीज हो रहा है, आंसर मैं लिख रहा हूं, और फिर देखो कहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो 3 से 4. ओके, और इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल, तो इंक्रीज किस में कर रहा है, तो देख लो इंक्रीजिंग इन 2 to 3. ओके, यहाँ ग्राफ से देख लो, जब x बढ़ाने पे y बढ़ता है तो इंक्रीजिंग बोलते हैं उसको. एंड और देख सकते हो कहीं इंक्रीज नहीं करा, अब कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट इन द इंटरवल 4 to infinity. So this is best method if you are able to draw the graph. We can call intervals of increase or decrease. X axis पे intervals mark करना. We are bothered about for what x f(x) is increasing or decreasing or constant. तो we have written the answer. अब यूनियन नहीं लेना, -1 से 2 और 3 से 4 का यूनियन अवॉइड करते हैं. हाँ, ये अलग बात है कि रफली इट वर्क्स, बट आपको यूनियन नहीं लेना है. जो इंटरवल हो कॉमास में उसको सजा दोगे. आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर. ग्राफिकल अप्रोच, तो ग्राफ ड्रॉ करोगे, फटाफट ग्राफ से इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज डिक्रीज बता दोगे. आई विल टेक सम मोर न्यूमेरिकल्स. फर्स्ट आई शुड क्लियर द कॉन्सेप्ट, 2 मेथड्स. तो ग्राफिकल अप्रोच इज आई थिंक क्लियर. नाउ आई एम टेकिंग कैलकुलस मेथड. कैलकुलस मेथड के लिए देखो क्या क्या तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए. पहला स्टेप, मैं स्टेप्स लिखता जा रहा हूं. स्टेप 1, फाइंड डोमेन. डोमेन में ही, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. फाइंड डोमेन. डू मेंस एग्जाम फर्स्ट. जब मेंस एग्जाम क्लियर करोगे तभी एडवांस में जा सकते हो. इसीलिए मैं इसको बोलता हूं बच्चों, डू मेंस एग्जाम. डोमेन निकालो पहले. डू मेंस. डोमेन नहीं निकालोगे तो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक होगा. कहाँ लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, होल ऑफ द कैलकुलस, फिर देख सकते हो इनइक्वालिटीज, फिर आप इक्वेशंस, सब जगह डोमेन का जरूरत होता है. जहां फंक्शन डिफाइंड है, जहां इक्वेशन डिफाइंड है, जहां इनइक्वालिटी डिफाइंड है, वहीं हम लोग फंक्शंस के बारे में स्टडी कर सकते हैं. जहां डिफाइंड नहीं है, वी नेग्लेक्ट दोज एक्ट्स. सो इसीलिए हैबिट डाल लो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज के बाद मेंस एग्जाम पहले क्लियर करूंगा, डोमेन निकालूंगा, कोई भी सवाल हो. इवन इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो मेक हैबिट टू फाइंड डोमेन. फर्स्ट क्लियर डू मेंस एग्जाम. सो डोमेन निकाल लेना. उसके बाद करना फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड एफ डैश एक्स. जब एफ डैश एक्स निकाल लोगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करोगे. इंक्रीजिंग के लिए ध्यान से देखो, वेरी इजी, और डिक्रीजिंग के लिए. सो फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स, पुट एफ डैश एक्स इक्वल ग्रेटर देन 0. सॉल्व फॉर एक्स. योर टारगेट इज टू फाइंड एक्स. सो इनइक्वालिटी मिलेगा, सॉल्व फॉर एक्स. Again on this side, for decreasing function, put f dash x less than 0 and solve for x. F dash x can be equal to 0 at finite number of points. तो उसको इक्वलिटी साइन पे हो सकता है 0. I tell this
f dash x can be 0 at certain finite points. तो उसको हम लोग इसमें इंक्लूड कर देते हैं दोनों में. तो f dash x greater than 0 for increasing फाइंड एक्स. इनइक्वालिटी आएगा. इनइक्वालिटी टू टाइप्स का जनरली होगा. एक होगा अलजेब्राइक इनइक्वालिटी, सेकेंड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी. अलजेब्राइक इनइक्वालिटी बेस्ट मेथड इज मेथड ऑफ इंटरवल्स या वेवी कर्व मेथड. क्वाड्रेटिक में आई जनरली कवर दिस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी. यू मस्ट हैव कमांड ओवर टू टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज. फर्स्ट अलजेब्राइक इनइक्वालिटी, मेथड ऑफ इंटरवल्स, wavy curve method. Second one, trigonometric inequality. Trigonometric inequality, solving trigonometric inequality, apply trigonometric wheel. I have covered in a video of 11th class trigonometry. Trigonometric wheel, from there you can analyze for what theta inequality is true, and we call that trigonometric inequality. Okay, so you can watch the video of Maths on Track, Sabka Ganit, trigonometric section. Okay, you will find trigonometric wheel of sin theta, cos theta, tan theta, sec theta, cosec theta. It has been discussed in a very simplest way. You can learn that concept. So let us take numericals. तो क्या करोगे, फर्स्ट डोमेन निकालोगे, उसके बाद फाइंड f dash x. ये स्टेप 1 यहाँ से शुरू किया मैंने, ये स्टेप 2 कर सकते हो. ठीक है, दिस इज स्टेप 2. स्टेप 3 में आपका साइन डिसाइड करेगा. क्या करोगे, f dash x जब मिलेगा तो you will put positive for increasing, solve for x. Your target is to find x. X means intervals on which fx is increasing या in which fx is increasing or decreasing. तो f dash x greater than 0, f dash x less than 0. Very easy. You have to follow this approach, graphical approach, calculus method या derivative approach. Now I will take one numerical of derivative method. तो फटाफट मैं सवाल ले रहा हूं, और इसमें देखिए डोमेन, मैं 2 सवाल लिखने जा रहा हूं. एग्जांपल 1 इस दिस साइड एंड एग्जाम. मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले. fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ मॉड x. ओके, सो दिस इज न्यूमेरिकल. तो आई विल फाइंड इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ दिस फंक्शन. लुक एट द प्रॉब्लम. और इसी का सब्सिडरी पार्ट जो होगा, दूसरा सवाल बन जाएगा. तो मैं उसको दूसरा सवाल कहूंगा. तो सेकंड पार्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोनों को साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे. fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस लॉग x. हियर वी हैव मॉड x एंड हियर वी हैव x. आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर. So I have taken 2 numericals. Look at the problem very clearly. First question, fx is equal to 2x square log of mod x. Second question, fx 2x square minus log x. What is the difference between these two problems? You have to find intervals of increase or decrease. Question, find intervals of increase or decrease. So very good question I have taken to convey important point. Look at the concept. देखिए क्या है, मैंने कहा था, if you remember the steps, I had told you first of all find the domain. दोनों का डोमेन फटाफट निकालोगे. पहले का डोमेन, फर्स्ट का डोमेन क्या होगा, व्हाट इज डोमेन ऑफ फर्स्ट. तो यहाँ मैं डोमेन ऑफ फर्स्ट इज व्हाट. तो देख सकते हो log x, 2x स्क्वायर इज डिफाइंड फॉर ऑल x. व्हाट अबाउट log mod x? Log mod x is defined for all real except 0. So I will call this is r minus 0. And domain of, again second one, this one log x, 2x square is defined everywhere. What about log x? You know that log is defined only for positive, real I am talking. So here we have 0 to infinity, r plus you can see. So there is basic difference. Domain of both functions are different. So answer of the first, intervals of increase or decrease of first
will lie in this interval, and for second I will take only this interval. So depending on domain I will answer both questions. अब मैंने दोनों एक साथ क्यों लिखा है, दोनों को डिफरेंशिएट करोगे you will get same derivative formula. Differentiating both of one you will get the same derivative formula. तो differentiating first step, differentiating with respect to x, दोनों को x के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे, what you will get, log mod x का डेरिवेटिव 1 by x होता है. You know that log mod x, what is derivative of log mod x? So this is 1 by x, x not equal to 0. Okay, और log x का डेरिवेटिव 1 by x लिखते हो, x पॉजिटिव के लिए लिखते हो. Generally we do not write x positive, but it is obvious that derivative, this is called domain of derivative. तो ये ध्यान रखना, log mod x का भी डेरिवेटिव 1 by x, log x का भी डेरिवेटिव 1 by x हम लोग लिखते हैं. अब देखो जब ये डिफरेंशिएट करेंगे तो f dash x दोनों के लिए सेम फॉर्मूले आएगा. Here you will get 4x2 into 2, 4x minus derivative of this is 1 by x. Here also you will get 4x and log x derivative is 1 by x. Now फटाफट मेथड ऑफ इंटरवल बनाओगे, फैक्टराइज करोगे तो x हो गया तुम्हारा LCM 4x square minus 1. फैक्टराइज करोगे तो you have two factors, 2x minus 1 first factor and second factor is 2x plus 1 divided by x. Now which method we will apply? अब f dash x we will find sin of f dash x. Sin of f dash x के लिए हम लोग मेथड ऑफ इंटरवल्स लगाएंगे. तो अप्लाई मेथड ऑफ इंटरवल्स फॉर sin of f dash x. Sin means where f dash x is positive, where f dash x is negative. फटाफट देखो यहाँ इसको जीरो करोगे x हाफ देगा, दिस फैक्टर जीरो, माइनस हाफ देगा, दिस जीरो, जीरो देगा. नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, फास्टली ड्रॉ द नंबर लाइन. ऑन द नंबर लाइन मार्क द रूट्स ऑफ ईच फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. रूट ऑफ दिस फैक्टर, व्हाट इज रूट ऑफ दिस फैक्टर? हाफ. व्हाट इज रूट ऑफ दिस फैक्टर? जीरो करने के बाद माइनस हाफ. तो वी हैव दिस इज माइनस हाफ एंड दिस इज हाफ and this is 0. So this is sin of f dash x I am writing. Now apply method of intervals. हाफ से ज्यादा लोगे using method of interval. What is the sign for f dash x greater than half? यहाँ रखोगे any number greater than half. You will find positive sign. In this interval you will get negative sign. Again you will find positive sign. Again you will find negative sign. Alternate the sign. f dash x is less than 0. I have told you अगर f dash x जिस इंटरवल में less than 0 होगा तो you call this is decreasing. ये decreasing होगा. फिर इधर देखो, इधर increasing होगा. पॉजिटिव है f dash x depending on sign of f dash x. Again less than 0 decreasing. एरो से दिखा रहा हूँ, जब एरो डाउनवर्ड जा रहा है decreasing, जब एरो अपवर्ड जा रहा है increasing. So again in this interval this is increasing. Okay, मैं लिख भी दे रहा हूँ. This is decreasing part, this is increasing part, this is decreasing part and this is increasing part. Now we will write answer for both the numericals. अब डोमेन देखते हुए आंसर दोगे, ये नहीं कि दोनों में यही आंसर चिपका दिए. थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम लोग जब आंसर लिखेंगे तो we will look at the domain. तो व्हाट इज आंसर ऑफ फर्स्ट? आई एम राइटिंग हियर. इंटरवल्स बताना. फर्स्ट के लिए देख लो r माइनस 0, 0 को छोड़कर सारा ले सकते हो. तो लुक एट हियर डिक्रीजिंग. तो मैं लिखूंगा यहाँ, देखो यहाँ लिखने जा रहा हूँ डिक्रीजिंग. किस में? इन कौन से इंटरवल में? माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ. ओके, माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ. अगेन डिक्रीजिंग इन 0 to half or increasing in, we have minus half to 0 comma half to infinity.
क्योंकि इसका डोमेन जो है r माइनस जीरो है, जीरो को छोड़कर ऑल रियल लाइन यू कैन टेक। तो रियल लाइन मैंने सजा ही दिया है, वहां से सेलेक्ट कर लो। सो दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट। व्हाट इज आंसर ऑफ सेकंड? आंसर सेकंड का, फॉर सेकंड वी हैव डोमेन इज r प्लस, केवल इतना ही ले सकते हो डोमेन। लुक एट द पेन, इस साइड का केवल लिखोगे तो आंसर डिक्रीजिंग इन विच इंटरवल, 0 to half, increasing in which interval, half to infinity. So I think both questions look same derivative के बाद, but both have different answers. किसी ने पूछा how, by domain. You have cleared JEE Mains exam. Now you can assess how to clear JEE Advance. तो डोमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दोनों के लिए मैंने सेम डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिया है, मेथड ऑफ। नाउ लेट अस लुक व्हाट मोना एंड टोनी आर डूइंग इन द सिटी। लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम, a very good problem. I have selected this numerical to convey very important message. क्या? अगर फंक्शन में, ये आपके माइंड में होगा, अगर फंक्शन में एक से ज्यादा फॉर्मूला होगा तो व्हाट वी विल डू। तो इसी के लिए मैंने मॉडुलस का सिलेक्शन किया है, क्योंकि मॉडुलस को व्हेन एवर यू सिंप्लीफाई मॉडुलस यू गेट डिफरेंट फॉर्मूले इन डिफरेंट इंटरवल्स, यू नो दिस। तो सिंप्लीफाई द मॉडुलस, क्योंकि देखो ये डेरिवेटिव है, यहाँ हम लोग ग्राफ नहीं बनाने जा रहे बिकॉज ग्राफ विल बी कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉम योर साइड। मेरे लिए तो इजी होगा बट फ्रॉम योर साइड इट विल बी डिफिकल्ट। सो आई विल अप्लाई कैलकुलस मेथड, डेरिवेटिव मेथड। दो ही मेथड है, आर या पार, ग्राफ बनाओ या नहीं तो डेरिवेटिव मेथड लगाओ। तीसरा मेथड तो वही है, जय हनुमान जी, जय बजरंग बली, ये सब का के, ये तो ये हमेशा मेथड काम करता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट टू मेथड्स। सो यहाँ सबसे पहले मॉडुलस जब आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि एक पैनिक हो जाता है, यार मॉड आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, फटाफट भागो, कोरोना आ गया। वो नहीं, मॉडुलस आए उसको एकदम एक्सेप्ट कीजिए, लाइक अतिथि, अतिथि देवो भव, गेस्ट जैसे आता, आइए, पानी दिए उसको, अच्छे से इज्जत दिए। तो मॉडुलस आया, उसको इज्जत दिए कि चले आपको जगह देते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के बाद उनको कुछ चाय नाश्ता मीन्स डिफ्रेंशिएट करोगे। तो ये सब का आपको प्रोसेस करना है। पहला रूल, डो नॉट पैनिक बाय सीइंग द न्यूमेरिकल। एक रूल याद रखो जो हमारे टीचर बताते थे, मुलायम सिंह अप्रोच। क्या है मुलायम सिंह अप्रोच? अगर देखो हमारे टीचर एक बताते थे कि मैथ्स का सवाल हो तो अप्लाई मुलायम सिंह अप्रोच। मुलायम सिंह नेता है, फेमस लीडर ऑफ यूपी, चीफ मिनिस्टर भी थे, एक्स चीफ मिनिस्टर। क्या है मुलायम सिंह अप्रोच? बहुत फनी लगेगा। देखो न्यूमेरिकल और आप हैं, तो जब न्यूमेरिकल आपको मिला मैथ्स का, फर्स्ट साइट आपने देखा, डर गए। डर गए का मतलब मुलायम हो गए, तो वो जो है न्यूमेरिकल वो आपके लिए सिंह हो गया, मीन्स डराने लगा, हा हा करने लगा, सींग दिखाने लगा, दांत दिखाने लगा। और जब आप सिंह हो गए, शेर हो गए, तो वो मुलायम हो गया। तो दोनों में सोच लीजिए कौन सा बेटर है। तो अप्लाई मुलायम सिंह अप्रोच। अगर आप सिंह हो जाएंगे तो वो मुलायम हो जाएगा। दिस इज जनरली आप फील करते होंगे, जिस सवाल के पीछे पड़ जाते होंगे तो फटाफट सॉल्व होता है, और सोच लेते हैं यार मेरे से नहीं बनेगा, तो नहीं बनता। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला स्टेप, सिंप्लीफाई दिस। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, एफ एक्स वेरी इजी, 1 के अबाउट ये सिंप्लीफाई होगा। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, x ग्रेटर देन 1 लोगे, x लेस देन 1, तो 1 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। x क्या ले रहा हूं मैं, x ले रहा हूं लेस देन 1, इक्वलिटी साइन भी ले सकते हो। और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लोगे तो x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। आई एम रिमूविंग मॉडुलस साइन, तो मॉडुलस साइन को रिमूव करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, सिंप्लीफाई। नाउ आई विल लुक एट द हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव, कैलकुलस मेथड। तो डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के पहले आप शॉर्टकट अप्रोच लगाएंगे कि 1 के अराउंड कंटिन्यूअस है, तो 1 पे अगर अनडिफाइंड होगा तो 1 को एक्सक्लूड करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो व्हाट यू विल गेट, f डैश x इज इक्वल टू
तो यहाँ से डिफरेंशिएट मैं करने जा रहा हूँ, सिंपल डिफरेंशिएशन अलग अलग करके कर सकते हो। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे बाय क्वोशिएंट रूल तो यू विल फाइंड दिस। मैं इसको अलग से बता दे रहा हूँ, 1/x² माइनस 1/x। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा तुम्हारे को -2/x³ और यहाँ से मिलेगा +1/x²। और एलसीएम लोगे तो यू विल फाइंड दिस, x³ मैंने ले लिया एलसीएम, तो दिस इज -2 + x लेस देन और इक्वल टू 1 मैंने हटा दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई हैव डिस्कस्ड इन डिफरेंशिएबिलिटी, इक्वालिटी साइन रिमूव कर दोगे। क्यों? क्योंकि दोनों साइड में अलग अलग आंसर देगा। इसको भी डिफरेंशिएट करोगे, ये जस्ट इसका अपोजिट है, तो डू नॉट वेस्ट द टाइम। आपको जो मिलेगा यहाँ जो डेरिवेटिव मिलेगा तो यहाँ मिलेगा +2 - x/x³ एंड x ग्रेटर देन 1। इक्वालिटी साइन रिमूव कर दोगे, इसका जस्ट अपोजिट है। लुक एट द फॉर्मूले। अब यहाँ से मेथड ऑफ इंटरवल लगाओगे फटाफट। तो एक मेथड ऑफ इंटरवल्स के लिए क्या है, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और लिखोगे साइन ऑफ f'(x). नंबर लाइन पे आप देखेंगे दिस इज 0 एट x = 2, दिस इज ऑल्सो 0 एट x = 2, नीचे x = 0, तो वी हैव टू नंबर्स x = 2, x = 0। ओके, नाउ अब दोनों फॉर्मूला का अपने हिसाब से x < 1 के लिए ये वाला पार्ट चेक करोगे और 1 के अराउंड भी लेना पड़ेगा क्योंकि 1 पे भी चेंज हो रहा है, तो एक नंबर बाद में 1 रखेंगे क्योंकि दिस इज चेंजिंग नियर इन द नेबरहुड ऑफ 1। दोनों अलग अलग फॉर्मूले है, तो 1 को बाद में इंसर्ट कर दोगे। तो कितना इंटरवल मिला बच्चों, 1 2 3 4 4 इंटरवल्स। 1 बाद में मैंने रखा इन दोनों को देखकर, ठीक है। अब तुम्हारे पास जब ये आ गया तो मेथड ऑफ इंटरवल्स लगाओगे। 1 से लेस देन लोगे, ये देखो 1 से लेस देन, तो ये वाला फॉर्मूले को केवल चेक करोगे, फर्स्ट वाले को लेस देन 1, ये वाला पार्ट फर्स्ट फॉर्मूले, और ग्रेटर देन 1 में सेकेंड फॉर्मूले के लिए साइन देखोगे, किसका, f'(x) का। फटाफट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डोमेन ऑफ डेरिवेटिव के हिसाब से यू हैव टू डिसाइड पॉजिटिव और निगेटिव साइन। तो लेस देन 1, यहाँ लेस देन 1 रखोगे तो देख लो बच्चों क्या मिलेगा, 2 के 1 से कम लेंगे, मान लो मैंने लिया 0 पे ये क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है। और हम लोगों को साइन भी देखना है इसमें क्योंकि 0 भी एक नंबर आ रहा है, तो 0 से 1 में जब हम लोग नंबर लेंगे, सपोज आई टेक हाफ, तो हाफ लेंगे तो ये क्या साइन देगा, ये देगा तुम्हें निगेटिव, ठीक है। 2 - 2 + हाफ बाय दिस, तो निगेटिव। तो इधर क्या मिल जाएगा तुम्हें, पॉजिटिव मिल जाएगा क्योंकि निगेटिव नंबर लोगे -1 तो निगेटिव मिल जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव। x ग्रेटर देन 1, फॉर x ग्रेटर देन 1 तो 1 से 2 में लोगे जब इसमें, तो 1 से 2 में लोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और 2 से बड़ा लोगे तो ये क्या देगा, निगेटिव देगा। सो बाय दिस मेथड, पहले वाले फॉर्मूले के लिए ये वाला फर्स्ट मैंने लिखा है, ये किसका, f'(x) का फर्स्ट फॉर्मूला। इस पार्ट में केवल चेक करोगे मेथड ऑफ इंटरवल्स, और सेकेंड फॉर्मूला इस पार्ट में चेक करोगे। बाय दिस वी पुट ± साइन। अब आंसर यहां से लिख लो, तो दिस इज इंक्रीजिंग, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं और एरो बना दे रहा हूं, दिस इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, increasing in this interval, decreasing in this interval, where derivative is positive downward slide कर रहा है, और जहां पॉजिटिव है अपवर्ड जा रहा है, जैसे सो आंसर ऑफ प्रीवियस न्यूमेरिकल क्या होगा, जस्ट जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, इंक्रीजिंग इन दिस, डिक्रीजिंग इन दिस, अगेन इंक्रीजिंग, अगेन डिक्रीजिंग। सो आंसर मैं लिखने जा रहा हूं फाइनल प्रीवियस क्वेश्चन का, तो आंसर इज we have increasing in which interval, look at x-axis, so we have this is -∞ to 0, okay, and again increasing in which interval, second interval 1 to 2, so this is increasing part. Decreasing in which interval, so decreasing in 0 to 1 comma union, not union, I am taking 2 to infinity. So this is answer of the previous problem I was discussing. Okay, so I think this is clear to all of you. Now we will take next numerical written on the board.
Next numerical is written this side. First I remove this. Now look at the next numerical. Find the least value of k for which this function is increasing in the given interval. A very good question for JEE Mains and even board exam. So also NDA exam. Look at the problem. क्या कह रहा है इसमें? Find least value. Least means कम से कम, सबसे smallest value of k निकालना. For which this function is increasing. Red मैंने मार्क कर दिया. What are important point? So first क्या करोगे? ग्राफ बनाने में it will be very difficult for you if you learn the calculus method. That is best method for you. Otherwise parabolic ग्राफ बनाकर you can find the answer. So सबसे पहले what you will do? तो मैंने बता ही दिया. You will apply derivative method. तो डेरिवेटिव के लिए सॉल्यूशन मैं लिखने जा रहा हूँ. What is solution? f dash x differentiating with respect to x क्या मिलेगा? We have this is 2x plus k. First step differentiate with respect to x. I think differentiation past must be stronger for you. तो ये करोगे. अब देखो क्या कह रहा है. This is increasing in this. अब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव. What is sign of derivative? Positive. So this implies since fx is increasing in the interval 1 to 2, this implies sign of f dash x must be positive in the interval 1 to 2. Okay, this is obvious part. Now f dash x is positive in 1 to 2. From here we will proceed further. तो f dash x का साइन पता चल गया. It is always positive. Now again I am taking one more step. तो again differentiating with respect to x. Again differentiating with respect to x. तो क्या मिलेगा? f double dash x is equal to 2 and this is positive. Second derivative is positive. What is meaning of this? तो this means increasing function. क्लियर हो गया दिस पार्ट? अगर कोई डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो उसके एक जस्ट नीचे जो फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन वो इंक्रीजिंग होगा. तो दिस सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव. दिस मींस फर्स्ट डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग फंक्शन. सो f dash x इज पॉजिटिव. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. एंड f dash x इज इंक्रीजिंग फंक्शन. यूजिंग दीज टू आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं. f dash x लीनियर फंक्शन है तो मैं फटाफट ग्राफ बना देता हूँ. ये ध्यान से देखो बच्चों. ये x एक्सिस है 2x plus k. ग्राफ ऑफ f dash x. तो 2x plus k is this graph. This is graph of 2x plus k. क्यों? एक्यूट एंगल बनाना है. 2 स्लोप इसका 2 है, पॉजिटिव है. 1 से 2 में इसको देखना है. ये 1 हो गया और ये तुम्हारा 2 है. ठीक है. लुक एट हियर. दिस इज 1 and 2. 1 and 2 पार्ट में देखना इंटरवल. तो f dash x पॉजिटिव भी हो गया अकॉर्डिंग टू ग्राफ अबव x एक्सिस और f dash x इंक्रीजिंग भी हो गया. तो दोनों को मैंने सेटिस्फाई करवा दिया. दिस एंड दिस दोनों को मिलाकर मैंने ये बना दिया. अब देखो 1 पे इसका वैल्यू क्या होगा फटाफट देख लो. व्हाट इज वैल्यू एट 1? तो 1 जब रखोगे इस फंक्शन में तो क्या मिलेगा तुम्हें? तो तुम्हें मिलेगा 4 प्लस के. 1 रखो, सॉरी 2 प्लस के. ओके, तो ये 2 प्लस के आएगा. और इस पॉइंट पे जब 2 का वैल्यू रखोगे x का वैल्यू तो ये मिलेगा 2 पे तुम्हें मिलेगा 2, 4 प्लस. तो फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर. दिस इज लीस्ट वैल्यू, दिस इज ग्रेटेस्ट. तो आपको लिस्ट पूछा जा रहा है तो आई थिंक लिस्ट कम्स हियर. और लिस्ट जो ना f dash x is always positive. So from here we can say, from this part we can say 2 plus k height must be positive. So we have k is always greater than -2. Later on you can take equality sign. हर जगह ले सकते हो. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आप you can take equality sign. At certain finite number of points you can include. ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आप ले सकते हैं. सो फाइनली ये लोएस्ट पॉइंट हो गया उसका हाइट.
So this is the answer of this question. So what is least value of k? So -2. -2 is the answer. I think I have cleared the concept of increasing decreasing in very simplest way. You can apply these concepts for JEE Mains, NDA, KVPY and all other engineering competitive exams. In next video, I will take application of increasing decreasing. Keep watching the video of Maths on Track, Sabka Ganit, mathematics for you, mathematics for me, mathematics for everyone. Have a nice day. Thank you.